میں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اپنا سر شاہد۔ بچہ امید ہے آپ سب مزے میں ہوں گے، اچھے سے ہوں گے اور خوب دل لگا کے پڑھائی کر رہے ہوں گے۔ تو بچہ اس چینل پہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کے سبھی سبجیکٹس پڑھائے جائیں گے۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو کلاس 5 سے لے کر کلاس 10 تک کے سبھی سبجیکٹس بآسانی اس چینل سے مل پائیں۔ تو اگر آپ کو کوئی بھی چیپٹر یا کسی بھی چیپٹر کے کوشچن آنسرز دیکھنے ہو تو آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد چینل کے اندر جا کے پلے لسٹ میں جائیے اور بآسانی سے کوئی بھی چیپٹر یا اس کے کوشچن آنسرز مل جائیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں آگے، اور آج ہم آپ کو کلاس 7 اردو میں پڑھانے والے ہیں نیوٹن کا کارنامہ۔ درختوں سے پھل گرتے کس نے نہیں دیکھے، مگر جب سیب کا ایک ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا تو انسانی علم اور فکر کی تاریخ کا ایک نیا باب کھل گیا۔ پورا درخت جو ہوتے ہیں وہ پھل سے، درختوں سے پھل جو ہیں وہ نیچے کس نے نہیں گرتے ہوئے دیکھے، ٹھیک ہے۔ جو بھی کوئی درخت ہوتا ہے، جہاں پہ بھی کوئی پلانٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیڑ پودے ہوتے ہیں، اس سے ہمیشہ جو پھل ہیں وہ کہاں آتے ہیں، جو اس کے میوے ہوتے ہیں وہ کہاں گرتے ہیں، نیچے ہی تو گرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بولو کس نے نہیں دیکھے، سب نے دیکھے، ہم نے بھی دیکھے، آپ نے بھی دیکھے، لیکن جب ایک ٹکڑا، اسی سیب کا ٹکڑا نیوٹن کے سر پر پڑا، ٹھیک ہے، تو انسانی علم، یعنی کہ انسان نے سوچنا، علم ہو گیا کوئی جانکاری حاصل کرنا، ٹھیک ہے، اور فکر ہو گیا کسی چیز کے بارے میں سوچ و فکر کرنا، ٹھیک ہے۔ تو سوچ کی تاریخ ایک نیا باب، وہاں سے ایک نئی تاریخ، ایک نئی شروعات، ٹھیک ہے، ایک نیا باب کھل گیا، ایک نئی تاریخ، ٹھیک ہے، ایک نیا دروازہ، باب دروازے کو بولتے ہیں، ایک نیا دروازہ، یعنی کہ ایک نئی سوچ و فکر کے لیے انسان نے سوچنا شروع کر دیا، ٹھیک ہے۔ اور یہ پہلے کون تھے؟ نیوٹن تھے، جنہوں نے اس کی شروعات کی۔ کیونکہ اس واقعہ سے سائنسدان نے کشش شکل کے وہ اصول اخذ کیے۔ تو اس واقعہ سے جب نیوٹن کے سر پہ یہ جو ایک ٹکڑا ہے گرا، تو سائنس نے کشش شکل، یعنی کہ جو نیوٹن تھا اسی نے تو شروعات کی، کشش شکل بولتے ہیں گریویٹیشنل فورس کو، ٹھیک ہے۔ گریویٹیشنل فورس دو آبجیکٹس کے بیچ میں لگتی ہے اور وہ ہمیشہ دوسرے آبجیکٹ کو اپنے سینٹر کی اور کھینچتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ سینٹر ٹو سینٹر دو آبجیکٹس کے بیچ میں فورس لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو زمین ہے وہ ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے، کیوں کھینچتی ہے؟ یہ جو فورس کھینچتی ہے، جس طاقت کی وجہ سے کھینچتی ہے، اسی کو بولتے ہیں کشش شکل، یا اس کو گریویٹیشنل فورس بھی سائنس میں کہا جاتا ہے، یاد رکھیے گا۔ تو اب کیا ہوتا ہے جی کہ وہ اصول اخذ کر لیے، تو انہوں نے وہ رولز، ٹھیک ہے، رولز اخذ کر لیے، یعنی کہ فائنڈ آؤٹ کر لیے، دیکھ لیے، جنہوں نے آج کل کی سائنس کیسر حد و حال کی تربیت دی ہے۔ تو اسی کی وجہ سے جو آج کل کی سائنس اس کو کیسر کا حد و حال یعنی کہ نقشہ کھینچا، ٹھیک ہے۔ آج کل کی سائنس کی جو تربیت کر لی، اس کا نقشہ کھینچ لیا، تو یہ انہی کی دین ہے۔ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ماڈرن سائنس جیسے گلیلیو اور اس کے پیشوروں نے اپنے خون سے سینچا ہے۔ جو ماڈرن سائنس ہے، ٹھیک ہے، جو آج کی سائنس ہمارے پاس ہے، نئی سائنس، یعنی کہ جسے گلیلیو سائنسدان تھا، ایک سائنٹسٹ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کے پیشور ہو گئے جو آگے ان سے اور باقی سائنٹسٹ گئے ہیں، انہوں نے اپنے خون سے سینچا تھا، ٹھیک ہے، یعنی کہ سائنس کے لیے انہوں نے اپنے خون تک دیا ہے، ٹھیک ہے۔ نیوٹن خون سے سینچا ہو گیا، خون تک دیا ہے، ٹھیک ہے، اوکے۔ نیوٹن تک پہنچتے ہوئے ایک تناور پودا بن گیا تھا۔ جب نیوٹن کی باری آئی، یعنی کہ نیوٹن نے سوچنا شروع کیا، تب تک سائنس نے بہت ساری ترقی، تناور پودا یہاں پہ یعنی کہ ترقی، سائنس کی ترقی، جس طرح ایک پلانٹ جو ہے، ایک پیڑ جو ہے وہ جوان ہو جاتا ہے، موٹا ہو جاتا ہے، پھر وہ پھل دینے لگ جاتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے نیوٹن جب سائنس کے بارے میں سوچنا شروع کیا، تب تک بہت ساری چیزیں سائنس کی وجود میں آ گئی تھی، جیسے کہ کس نے، جیسے گلیلیو اور سائنسدان انہوں نے بہت ساری باتیں کہہ لی تھی، ٹھیک ہے، سائنس کے بارے میں۔ تو اس لیے نیوٹن کے لیے ایک تیار چیز تھی جس پہ اس نے کام کرنا شروع کیا، یعنی کہ سائنسدان تھے نیوٹن، تو اسی لیے انہوں نے جب اس پہ کام کرنا شروع کیا تو ان کے پاس بہت ساری چیزیں پہلے ہی آئی ہوئی تھی، جیسے آج ہمارے پاس فون ہے، سب کچھ ہے، تو ہم اس سے کچھ کام کر سکتے ہیں، بڑی بڑی چیزیں، لیکن اس سے پہلے بہت لوگوں نے محنت کر کے اس فون کو بنایا ہے اور کام کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے آپ نے سنا ہوگا پرانے وقت کے لوگ وہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے، تو پھر آہستہ آہستہ یہ کام ہوتے ہوتے جیسے ہم تک پہنچ گیا، اب ہم کچھ کام کر سکتے ہیں، پھر آگے اور جو آئیں گے وہ ہماری چیز کو دیکھ کے اس سے بہتر کریں گے۔ تو اس طرح جب نیوٹن آئے، یعنی کہ تب تک تھوڑا بہت سائنس کا کام ہو چکا تھا، ایک اچھا پودا تیار ہو چکا، تھوڑا نہیں، ایک اچھا پودا تیار تھا، یعنی کہ بہت ساری سائنس کی کام ہوئی تھی، جس کی مزید نشو و نما کو سازگار ہوا کے جھونکوں سے کوئی خطرہ نہ رہا۔ تو پھر اس کے بعد یعنی کہ اس کو بالکل، جس کو مزید ہو گیا اور نشو و نما، ٹھیک ہے، نشو و نما ہو گیا اس کو، یعنی کہ اس کی خدمت کرنا، اس کو پھولنا پھلنا، ٹھیک ہے، اوکے، یعنی کہ ایک پلانٹ جیسے ہوتا ہے، ایک پیڑ ہوتا ہے، اس پہ پھول پھلتے ہیں، تو اسی کو بولتے ہیں نشو و نما، ٹھیک ہے، اس کا پھولنا پھلنا بڑا ہونا۔ تو اس طرح سائنس میں یعنی کہ اور آگے اس کو بڑھنا، اس کے لیے اب کوئی خطرہ نہیں رہا تھا، کیونکہ نیوٹن نے بہت ساری چیزیں کی ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم آگے دیکھیں گے۔ نیوٹن نے ایسے کارنامے انجام دے دیے۔ نیوٹن کے عہد میں ریاضی، نجوم، ستاروں کا علم اور فزکس جیسے علوم بلوغت کو پہنچے۔ تو نیوٹن کے عہد میں یعنی کہ اس کے دور میں، ٹھیک ہے، اس کا جب وقت تھا
तो क्या हुआ, जब यानी कि वो एक बड़े साइंसदान माने जाते थे, तो रियाजी मैथ्स को बोलते हैं, नजूम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमी को, ठीक है, जो सितारों के बारे में, सितारों का इल्म रखता है, ठीक है, स्टार्स का इल्म रखता है। और फिज़िक्स हमारा एक बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, और जो हमारा सब्जेक्ट भी है, हम भी फिज़िक्स पढ़ाते हैं। और इल्म बलोगत को पहुँचे, यानी कि ये सब जो अलूम है, इसके इल्म जो है, इसकी जानकारी जो है वो बलोगत होगी, जवानी, यानी कि बिल्कुल उनके बारे में अच्छी जानकारी आ गई, ठीक है। न्यूटन ने उनकी जानकारी हमारे सामने रखी। सोलह सौ 42 ईस्वी में जब रोम की जेल में गैलीलियो दम तोड़ रहा था, ठीक है, 1642 ईस्वी में रोम की जेल में, गैलीलियो जेल में ही थे, उनको जेल में बंद कर दिया गया था, तो फिर उन्होंने वहाँ पे ही वो मर गए, यानी कि दम तोड़ रहा था, वो जेल में ही मर गए थे, ठीक है। क्योंकि पहले ऐसा वक्त भी था जब साइंसदान कुछ बात बोलते थे तो उसकी बात जो है लोग नहीं मानते थे, फिर उस वजह से उन साइंसदानों को मार देते थे, ठीक है। तो क्योंकि लोग भरोसा उनका अपना ही एक जो है यकीन था, बिलीफ था, इसलिए लोग नहीं मानते थे साइंसदानों की बातें, ठीक है। इंग्लैंड के एक छोटे गांव में बाप की वफ़ात के बाद एक बेवा माँ के बतन से ज़माना हाजिर को बाबा साइंस एक लागर और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारद हुआ। तो क्या हुआ, जब गैलीलियो उधर से मर गया, ठीक है, तो इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में, इंग्लैंड के एक गांव था, तो जिसमें बाप की वफ़ात के बाद, क्योंकि न्यूटन का जो बाप है वो पहले ही मर चुका था, यानी कि जब ये अभी पेट में ही था, माँ के पेट में, ठीक है। तो बेवा माँ को, यानी कि जब उसका खाउन मर जाता है किसी बीवी का, तो उसको बेवा कहा जाता है। अब बेवा माँ को बतन से ज़माना हाजिर का, यानी कि जो आज का हमारा प्रेजेंट दौर है, ठीक है, इस वक्त जो हमारा जो है जो ज़माना है, ठीक है, इस वक्त हमारा जो वक्त है, तो इसका बाबा साइंसदान, ठीक है, बाबा यानी कि फादर ऑफ साइंस जिसको बोलेंगे हम, ठीक है। एक लागर हो गया कमज़ोर सा और बीमार बच्चे की शक्ल में इस दुनिया में वारद हुआ। वारद होना यानी कि पैदा होना, आ जाना, ठीक है, पैदा हो गया, ठीक है। तो माँ की दोबारा शादी पर इसकी परवरिश इसकी दादी ने की, क्योंकि ये अभी छोटा ही था, तो इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली, और इसकी जो परवरिश है, यानी कि इसका ख्याल जो है वो इसकी दादी ने रखा, ठीक है। नए खामद की वफ़ात के बाद माँ ने इसे अपने पास बुला लिया। तो जो दूसरी, जहाँ उसकी माँ ने दूसरी शादी की हुई थी, वहाँ पे भी जो उसका घर वाला था, जो उसका खामन था, वो मर गया, तो इसने न्यूटन को अपने पास बुला लिया, क्योंकि ये अकेली हो चुकी थी। तो उस वक्त न्यूटन 14 साल का था, तो न्यूटन की उम्र जो थी वो 14 साल थी, ठीक है, ये चीज़ें याद रखिएगा। वो कभी मशीनों के नमूने बनाकर खेलता, कभी शायरी पर कलम आजमाई करता, और कभी कमरे के दीवारों पर कोयले की तस्वीरें बनाता। तो मगर उसकी माँ उससे फ़नकार बनाना चाहती थी, ना कि साइंसदान। तो न्यूटन एक ऐसा इंसान था, ये कभी मशीनों के नमूने, यानी कि खुद ब खुद मशीनों के जो नमूने होते हैं, जैसे आज हम वो लाते हैं प्लास्टिक के अपने बच्चों के लिए खेल वगैरह, ठीक है, वो जो होते हैं प्लास्टिक के, ठीक है, तो इसी तरीके से वो जो नमूने होते हैं, तो ये भी ऐसे ही बनाता रहता था, खुद ही बनाता, खेलता रहता था, ठीक है। और कभी शायरी करता रहता था, ठीक है, शायरी पर कलम आजमाई, यानी कि लिखता रहता था, ठीक है, कलम आजमाई होगी, कलम से लिखना कुछ ना कुछ। और कभी कमरे की दीवारों पर कोयले से तस्वीरें बनाता था, कभी कोयले से, यानी कि, ठीक है, तस्वीरें बनाता था। मगर इसकी माँ इससे फ़नकार हो गया, जो आर्टिस्ट, जो कुछ ना कुछ ये लिखता है, बनाता है, ठीक है, चीज़ें बनाता है, उसको बोलते हैं फ़नकार। तो वो फ़नकार बनाना चाहती थी, ना कि साइंसदान, ठीक है, ओके। इससे पढ़ाई छुड़ाकर खेत के कामों में लगा दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा साइंसदान बने। मैंने आपको पहले ही कहा कि उस दौरान जो पुराने लोग हुआ करते थे, वो साइंसदानों को अच्छा नहीं मानते थे, वो बोलते थे शायद ये कुछ गलत कह रहे हैं, तो इसलिए तभी जो है गैलीलियो को भी मार दिया गया था, ठीक है। तो इसलिए इसको पढ़ाई छुड़ा दी और इसको खेतों में काम में लगा दिया, यानी कि एक मजदूर बना दिया छोटी ही उम्र में। एक बार उसके चाचा ने उससे काम से फरार होकर चोरी छुपे किताबें पढ़ते देखकर कहा। तो एक बार ये अचानक छुप के, यानी कि आया हुआ था, देखो ये शौक कैसे होता है, ऐसे ही शौक पैदा करना चाहिए। तो ये काम से छुप कर आया और किताबें पढ़ रहा था छुपे चोरी। तो उसके चाचा ने क्या कहा, तुम आवारा गर्द बनोगे या ज़हीन तरीन इंसान, ठीक है, या तो तुम बहुत आवारा बनोगे, यानी कि एक लापरवाह इंसान, एक घूमने फिरने वाले, ठीक है, या ज़हीन तरीन, या बहुत काबिल, ठीक है, काबिल तरीन, ठीक है। तो चाचा के कहने पर उसकी माँ उसे मज़ीद तालीम के लिए कैम्ब्रिज भेजने के लिए रजामंद हो गई, क्योंकि चाचा ने समझाया, तो इस पर उसकी माँ जो है वो रजामंद हो गई, वो यानी कि तैयार हो गई, ठीक है, इसलिए कि इसको कैम्ब्रिज भेजा जाए। कैम्ब्रिज एक यूनिवर्सिटी है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, जहाँ 4 साल बाद 23 साल की उम्र में उसने BA की डिग्री हासिल कर ली। तो 23 साल यानी कि 23 साल जिसको बोलते हैं हम, 23 ईयर्स, तो उसने BA की डिग्री वहाँ से हासिल कर ली। 1.5-2 बरस बाद न्यूटन को कैम्ब्रिज में मुअल्लिम की एक मामूली सी
नौकरी मिल गई। तो 1.5-2 बरस के बाद, उसके बाद जब उन्होंने 23 साल की उम्र में BA किया तो उसके 2 साल बाद, 1.5 साल बाद उन्हें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में ही एक मुअल्लिम हो गया, पढ़ाने वाला, ठीक है, उस्ताद की एक मामूली सी नौकरी, यानी कि तो एक छोटी सी नौकरी उसको पढ़ाने के लिए छोटे पद पर मिल गई, ठीक है। मगर उसने बहुत तेज़ी से तरक्की की, मेहनत करता रहा और 27 साल की उम्र में रियाजी का मुकम्मल प्रोफेसर बन गया। और 27 साल की उम्र में उसने क्या कर लिया, वो एक रियाजी यानी कि मैथमेटिक्स का प्रोफेसर बन गया कैम्ब्रिज के अंदर ही। न्यूटन ने इसके बाद अपनी दरियाफ्तों का एक लंबा सिलसिला शुरू किया और उसने उसके बाद दरियाफ्त यानी कि एक्सपेरिमेंट्स, रिसर्च, ठीक है, उसने लगातार करनी शुरू कर दी। रोशनी पर तजुर्बे करते हुए उसने बताया कि सफ़ेद रोशनी दरअसल 7 रंगों की रोशनियों का मरकब है। तो उसने ये भी कहा कि जो रोशनी पर तजुर्बे जब उसने किए, लाइट पर यानी कि उसने तजुर्बे किए, तो उसने बताया कि जो सफ़ेद यानी कि वाइट लाइट, इसको बोलेंगे सफ़ेद रोशनी जो है, ये वाइट लाइट कहलाती है, ठीक है बेटा। ओके, ये जो वाइट लाइट है ये दरअसल 7 रंगों की यानी कि 7 कलर्स की, ठीक है, रोशनियों का मरकब है। मरकब हो गया जुड़ा हुआ, यानी कि 7 कलर्स इसमें जुड़े हुए हैं, ठीक है, जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम, याद रखिएगा, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो साइंस में बहुत मज़ा आएगा, जब आप साइंस में इसको पढ़ोगे ना तो बहुत मज़ा आएगा, जिन्हें अलग अलग किया जा सकता है। और उसने कहा कि 7 कलर्स को हम अलग अलग कर सकते हैं। उसने चीज़ों की हरकत के बारे में 3 असूल दरियाफ्त किए, 3 ला, असूल बोलते हैं ला को, कानून, ठीक है। तो हरकत हो गया मोशन, हरकत क्या हो गया? मोशन। उसने मोशन के बारे में 3 ला जो है बनाए, ठीक है, जिनको न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन भी कहा जाता है। फिर उसके बाद पहला असूल ये है, यानी कि फर्स्ट ला जो है वो ये है कि कोई साकन चीज़ तब तक मुतहरिक नहीं होगी और कोई मुतहरिक चीज़ तब तक साकन नहीं होगी जब तक इस पर ताकत का इस्तेमाल ना होगा, ठीक है, हो जाए। तो कोई चीज़ जो है, पहला जो फर्स्ट ला है, ठीक है, फर्स्ट ला, तो वो क्या है? फर्स्ट ला ये है कि अगर कोई चीज़ साकिन है यानी कि रुकी हुई है, वो तब तक मुतहरिक होकर चलना शुरू नहीं करेगी जब तक, या कोई चीज़ जो मुतहरिक है, जो चल रही है, वो रुकेगी नहीं, साकिन नहीं हो जाएगी जब तक ना उस पर कोई ताकत लगाई जाएगी, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, ठीक है। तो तब तक वो चलती रहेगी, ठीक है। जैसे हम याद करते हैं ना पहला ला, फर्स्ट ला ऑफ मोशन, क्या कहता है? If a body is in motion, it will continue remain in motion. If a body is at rest, it will continue remain at rest unless and until an external force is applied. ठीक है, जब तक ना कोई बाहरी ताकत उस पर अप्लाई करेंगे या फोर्स उस पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। फिर उसके बाद दूसरा असूल के मुताबिक हरकत की रफ्तार ताकत की तनासब से बदलती है। तो दूसरा असूल ये कहता है कि जो हरकत है यानी कि जो मोशन है, उसकी रफ्तार, कितना मोशन ज़्यादा होगा ये डिपेंड करता है ताकत पे, कितनी आप ताकत की तनासब, जितनी आप ताकत ज़्यादा लगाओगे, ठीक है, तो हम बोलते हैं F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अभी आपने ये चीज़ें नहीं सीखी हैं, बस आप इतना याद रख लें कि दूसरा ला ये कहता है कि जितनी फोर्स ज़्यादा होगी, ठीक है, उतनी जो है बॉडी के अंदर जितनी ताकत ज़्यादा अप्लाई करेंगे उतनी ज़्यादा है उसके अंदर फोर्स आएगी, ठीक है। तीसरे असूल में उसने ये बताया कि हर अमल का मसावी और उल्टा रद्द अमल है, ठीक है। और तीसरा ला क्या कहा उसने, तीसरा कानून, कि हर हर अमल का जो भी कोई यानी कि एक्शन है, अमल हो गया एक्शन, जो भी कोई एक्शन करते हैं उसका मसावी, उसका यानी कि रद्द अमल, ठीक है, उल्टा रद्द अमल है, ठीक है। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये हमने थर्ड ला में पढ़ना है, ठीक है। तो आप आहिस्ता से ये आगे पढ़ेंगे जाते, ठीक है, अगली क्लासों में। इन असूलों ने न सिर्फ साइंस के उलूम को एक नई वसअत दी बल्कि अमली ईजाद को भी फ़रोग़ दी, यानी कि सिर्फ इसमें साइंस का इल्म ही हमें नहीं मिला बल्कि एक नई वसअत दी, एक नई वसअत, ठीक है, ओके। ईजाद में यानी कि ईजाद करने में हमें इन कानूनों को यूज़ करना, बहुत सारी ईजादें हमने इन कानूनों को यूज़ कर अपनी बहुत सारी ईजादें की, ठीक है। कशिश शकल की दरियाफ्त, जिसका राज इसने एक सेब को गिरते देखकर बताया था। कशिश शकल यानी कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसकी दरियाफ्त, जिसका रिसर्च जो है, जिसका जी, ठीक है, इसने एक राज, जो उसका राज है, ठीक है, वो कैसे बताया था? जब सेब गिर रहा था, नीचे गिरा, तो इसने उसको देखकर बताया। न्यूटन का साइंस की दुनिया को सबसे कीमती तोहफा है ये जो उसने ला बताया, ठीक है, ग्रेविटेशन ला, ये सबसे कीमती तोहफा है, ठीक है, गिफ्ट है। उसने बताया कि मादा हर ज़र्रा दूसरे ज़र्रे को अपनी तरफ खींचता है। तो ग्रेविटेशन लॉ में यही है कि एक चीज़ हर दूसरी चीज़ को अपनी तरफ खींचती है, ठीक है, ओके। इस बाहमी कशिश से ये निज़ाम और सियारों के निज़ाम कायम है। तो इसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, इस कशिश की वजह से ये जो निज़ाम है, ठीक है, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, इसका जो पूरा ये जो सितारे हैं, सियारे हैं, ये प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो ये जो
सैटेलाइट्स हैं ये पूरे के पूरे कायम है, यानी कि हमने कभी सूरज को नीचे आते हुए नहीं देखा, चांद को नीचे आते नहीं देखा, किसी और प्लैनेट को नीचे आते हुए नहीं देखा, वो घूम रहे हैं अपने महवर में, ठीक है, इस तरीके से घूम रहे हैं, ठीक है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रहे हैं सब के सब प्लैनेट। तो ये क्यों घूम रहे हैं, ये नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स एक दूसरे को इनको यहाँ पे बैलेंस करके रखी हुई है, ठीक है, उस वजह से एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टेड हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचे हुए हैं और अपने महसूस तरीके से मुतहरिक हैं, और यानी कि ये मूव कर रहे हैं एक महसूस एक पर्टिकुलर वे से, एक ख़ास तरीके से ये घूम रहे हैं, चल रहे हैं। इसी असूल की मदद से न्यूटन ने ज़मीन और सूरज का वज़न शुमार किया। तो इसी कानून को यूज़ करके हम इस्तेमाल करके हमने ज़मीन का कितना वज़न है ये भी हमने निकाला, यानी कि न्यूटन ने ही बताया, और सूरज का कितना वज़न है वो भी पता चल गया, यानी कि न्यूटन बहुत ही काबिल इंसान था। समुद्री ज्वार भट्टा को भी इसने चाँद और सूरज की कशिश का नतीजा बताया। ये जो समुद्री लहरें उठती हैं, ज्वार भट्टा ये जो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं, ठीक है, तो इसका भी राज क्या है, इसका भी राज यही जो है ग्रेविटेशनल कशिश है, चाँद और सूरज, ये जो उन्हीं की वजह से ये जो इसके अंदर लहरें हैं, समुद्र के अंदर लहरें जो है वो उठती हैं, ठीक है। न्यूटन ने रियाजी के इल्म में कुछ नए इजाफे किए जिनसे सभी अलूम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। न्यूटन ने रियाजी यानी कि मैथ के इल्म में कुछ नए इजाफे, कुछ एक्स्ट्रा उसने और भी ऐड किया, ठीक है, तो जिससे सब अलूम यानी कोई भी हम और इल्म जिस भी सब्जेक्ट का पढ़ रहे हो तो उसमें कहीं ना कहीं फ़ायदा मंद हो रहे हैं, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक़ न सिर्फ ज़्यादा वसीह किस्म के मसाइल पर होना मुमकिन हो गया बल्कि मुख्तसर फार्मूलों ने लंबे चौड़े अरबों की जगह ले ली। तो ये जो नए हदूद जो, क्योंकि नई हदों को छूने के बाद आज साइंस कहाँ पहुँच गई, ठीक है, आज मैथ कहाँ पहुँच गया, आज रिसर्च कहाँ पहुँच गई, तो इसका क्या हुआ, नई हदों को छूने के बाद रियाजी का इतलाक़, ठीक है, इतलाक़ यानी कि मैथ्स का इस्तेमाल, ठीक है, न सिर्फ वसी किस्म के मसाइल यानी कि सिर्फ किसी मसाइल पे ही नहीं, ठीक है, मसलों पे बल्कि होना शुरू हो गया, बल्कि मुख्तसर फार्मूले, और मैथ्स में ऐसे भी कुछ फार्मूले मुख्तसर छोटे छोटे फार्मूले हमने बना लिए, ठीक है, बहुत पढ़ने के बाद, बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद आप ये कह सकते हैं, ठीक है, लंबे चौड़े अरबों के यानी कि बहुत बड़े बड़े सवालों को एक जगह से हम छोटू से फार्मूला इस्तेमाल करके उनको सॉल्व कर सकते हैं या उनका जो जवाब है वो बता सकते हैं। न्यूटन अपनी तख्लील की उड़ान से मालूम इल्म की हदों को फानता कुदरत की गहराइयों तक पहुँच गया। तो न्यूटन ने अपनी तहलील की उड़ान जब उसने अपनी रिसर्च की उड़ान यानी कि आगे बढ़ा वो, ठीक है, पढ़ाई में पढ़ते हुए रिसर्च करते हुए मालूम है इल्म की हदों को, जो इल्म जानकारी हासिल करना है, हदों को फानते हुए यानी कि आगे निकलते हुए चीरते हुए कुदरत की गहराइयों में, जिसको नेचर बोलेंगे हम, ठीक है, नेचर की गहराइयों तक पहुंचकर इसके राज ढूंढ लाता था। यानी कि कोई भी नेचुरल फिनोमेना, जो भी कुछ कुदरती कोई भी चीज़ जो हो रही है उसकी वजह क्या है, ठीक है, तो जैसे जो हम बोलते हैं कि हमारा जो चाँद है वो ज़मीन के इर्द गिर्द जो है, ठीक है, घूमता है, तो किस तरह घूमता है, ये सब चीज़ें उसने ऐसे यानी कि कुदरती है, हमें तो इस तरह मालूम नहीं था, न्यूटन ने ऐसी सब चीज़ें देख ली, उसने ऐसी सब चीज़ों का राज निकाला है जिनका महफूम वो अपने साइंसी दिमाग का आश्कारा करता है। जो भी कोई चीज़ वो यानी कि समझ लेता था तो उसका महफूम यानी कि उसको खुद समझाना, ठीक है, अपने साइंसी दिमाग को इस्तेमाल करके हर एक के सामने लाता था, आश्कारा करता, यानी कि सब समझाने की कोशिश करता या सबके सामने जो है पेश कर देता, ठीक है। साइंस के मैदान में इसका ये शायराना अंदाज़ भी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायाँ था। तो साइंस के मैदान में इसका ये शायराना तरीका, शायराना अंदाज़, शायर भी थे वो, शायर की तरीके से, ठीक है, शायरों की तरीके से ज़िंदगी में नुमायाँ था, यानी कि दूर से नुमायाँ हो गए, जो बिल्कुल दिख रहा था, ठीक है। न्यूटन अपनी बनाई हुई दुनिया ही बसाता था, वो अपनी बनाई हुई दुनिया अपनी यानी कि वो जो उसकी लेबॉर्ट्रीज रिसर्च जहाँ पे वो थी बस उन्हीं में रहता था, वही उसको पसंद थी। अक्सर अपने लिबास रहन सहने का ढंग और खाने पीने की सुध न रहती थी। वो अक्सर तौर पर आम तौर पर लिबास यानी कि कपड़े, रहन सहन हो गया, उठना बैठना, ठीक है, खाना पीना, ढंग, कैसे कपड़े पहने, क्या करें, खाने पीने की सुध हो गया, ख्याल, उसको कोई भी ख्याल नहीं रहता था, खाना पीना, वक्त जा रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो बिल्कुल काम में हमेशा लगा रहता था। रियाजी की मशकों से न्यूटन का बुनियादी मकसद अपना जी बहलावा था। तो रियाज़ों की मशकें जो वो सवाल सॉल्व करता था, ठीक है, मैथ्स के जो क्वेश्चन वो सॉल्व करता था, उसका बुनियादी मकसद ये था वो खुद को उससे खुश रखता था, जी बहलाता था, ठीक है, यानी कि खुश रहना अपने आप को, ठीक है। वो साइंस के तजुर्बे महज अपनी तस्कीन के लिए करता, वो अपने लिए करता था, अपनी जानकारी के लिए, अपनी खुशी के लिए वो जो है
तसल्ली के लिए जो है साइंस के तजुर्बे करता था। अपनी दरियाफ़त और ईजाद शाया करने का शौक़ न था। अपनी दरियाफ़त, जो कुछ वो रिसर्च करता, जो कोई ईजाद करता, उनको शाया करना यानी कि मंज़र आम पर लाने को उसको कोई भी शौक़ न था। ठीक है। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैं कुछ भी शाया नहीं करूँगा, यानी कि मैं कुछ भी सामने नहीं लाऊँगा लोगों के, क्योंकि इससे जानकारों की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा, जानकारों की तादाद में इजाफ़ा हो जाएगा, यानी कि लोग जानने लग जाएंगे। ठीक है, ओके। 20 साल तक उसने अपने मताले के बेहतरीन नताइज को छुपा कर रखा। 20 साल तक उसने जो भी चीज़ें उसने यानी कि समझी, जो तो उसने किसी को उनके बारे में कुछ नहीं बोला। आखिर एक दोस्त की उन पर नज़र पड़ी, तो एक दोस्त की उन पर नज़र पड़ी जिसने उससे कायल किया और समझा समाज के तई उससे भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ, उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ। तो फिर उस दोस्त ने उसको कायल किया, यानी कि उसको इस बात के लिए तैयार किया, समझाया कि समाज के तई, यानी कि जो हमारा समाज है हमारा, उसके लिए उसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती है, वो कुछ अच्छा करना चाहिए। ठीक है। तो साइंस की जो आज हमारे पास जानकारियाँ, उनकी वजह से हमारे पास हमारी ज़िंदगी में बहुत आराम पहुँच जाए। तो इस तरीके से उसने भी यही कहा उससे कि आप अपनी जो आपको समझ आई हुई है वो आप सामने लाओ, लोगों को समझाओ, ताकि उनको आराम पहुँचे आपकी इन चीज़ों से। उसके मजबूर करने पर उसने लातीनी ज़बान, जो कि उस ज़माने में साइंस की ज़बान थी, 3 जल्द में शाया की, जिनका नाम था साइंस के रियाजी असूल। तो उसके बाद उसने एक जब मजबूर हो गया तो लातीनी एक ज़बान है, ठीक है, जो साइंस की ज़बान, यानी कि जिसको साइंस को उसी ज़बान में लिखा जाता था, तो 3 जल्द में, यानी कि 3 अलग अलग जल्द जो हैं, 3 जो है बुक्स उसने शाया की, जिनका अनवान था, यानी कि टॉपिक जो जिन पे लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, साइंस के रियाजी असूल। ठीक है। ये किताबें इंसानी इल्म को कई मराहल आगे ले जाने का बायस और आने वाली सारी साइंस की बुनियाद बनी। तो फिर जो इसने किताब में लिखा हुआ था, इसने हमारी साइंस को बहुत आगे लिया। ठीक है। तो साइंस को आगे ले जाने का बायस बना, यानी कि वजह बनी। ठीक है। और साइंस की बुनियादें बनी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद साइंस में, जिनकी बुनियाद ही उसकी ये किताबों के अंदर लिखी हुई चीज़ें बन गई। मगर न्यूटन के ज़माने में इनका कोई ख़ास हलचल पैदा ना हो सकी। लेकिन चूँकि न्यूटन के ज़माने में खुद इन चीज़ों की ज़्यादा जो फ़ायदे हैं वो सामने लोगों के नहीं आए, उसके बाद ही आए। ठीक है। क्योंकि ये अक्सर आलमों की समझ से भी बालातर थे, क्योंकि ये अक्सर आलम यानी कि पढ़ाने वाले जो थे, पढ़ने वाले, उनके समझ में भी सबके में इसकी बातें नहीं आती थी। साइंस के तौर पर अपने कमाल और अरूज तक पहुंचकर न्यूटन का दिल साइंस से भर गया। तो साइंस की जब उसने ज़्यादा से ज़्यादा कमाल किए, ज़्यादा से अरूज तक पहुँचे, ठीक है, साइंस के, तो न्यूटन का दिल साइंस से भर गया, यानी कि अब वो पूरा हो गया कि हाँ, साइंस के बारे में उसने ये समझा कि मैंने बहुत कुछ जान लिया है, बहुत कुछ सीख लिया, और उसे सियासी दरबारी पोजीशन की ख्वाहिश हुई। अब उसने कहा कि मैं सियासी यानी कि पॉलिटिक्स में उतर जाऊं और एक पोजीशन हासिल करूं, जैसे हम बोलते हैं PM CM, ठीक है, जो ये अलग अलग इतने चोर हैं सब इसी तरीके से, यानी कि उसने भी चाहा कि मुझे एक बादशाह की कुर्सी मिल जाए, यानी कि जो PM CM होते हैं, मिनिस्टर होते हैं। उसने जेम्स दोयम की हुकूमत की मुखालफत की। तो जेम्स दोयम जो था उस वक्त इंग्लैंड में, उसकी मुखालफत की, उसकी यानी कि अपोजिट हो गया, और उसकी हुकूमत की ख़ात्मा और विलियम मेरी की तहत नशीनी के बाद नया दस्तूर बनाने वाली कन्वेंशन का मेंबर बना। तो उसकी हुकूमत का ख़ात्मा करना, और दूसरी विलियम मेरी जो थी उसकी तख्त नशीनी, यानी कि उसको तख्त नशीनी हो गया, किसी को तख्त पर बैठाना, किसी को बादशाह बैठाना, किसी को हुकूमत देना, ठीक है, के लिए जो रूल्स बनाए गए थे, जो उसके में जो इस विलियम मेरी की जो पार्टी थी, उन्होंने जो दस्तूर बनाए थे, कानून बनाए थे, ठीक है, तो उसका मेंबर बना, यानी कि उनके साथ ये जुड़ गया, मिल गया, ठीक है। मगर बादशाह न्यूटन की सियासी काबिलियत से मुतासर ना हुआ, लेकिन बादशाह को जो था उसको, ठीक है, बिल्कुल भी इससे मुतासर नहीं हुआ, उसको कुछ खास न्यूटन नहीं लगा, क्योंकि वो जो पॉलिटिशियंस होते हैं वो अनपढ़ भी हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं, उनको ये न्यूटन की जो कदर कीमत है वो समझ नहीं आए, और इससे महज एक फ़लसफ़ी ही समझता रहा, और उसने उसको एक फ़लसफ़ी ही समझा, यानी कि उसके बारे में उसकी बातें समझ ना आई। न्यूटन 61 साल की उम्र में साइंसी अकादमी का सदर बन चुका था। साइंस अकादमी का वो सदर था, तो 2 साल बाद वो सर के खिताब से भी नवाजा गया, तो यानी कि उनको सर का खिताब मिला, ठीक है। अब वो इंग्लैंड की ऊंची सोसाइटी का मेंबर था। तो इंग्लैंड की जो ऊंची सोसाइटी है, सबसे यानी कि ऊंची, हर एक का अपना अपना दर्जा होता है इस सोसाइटी में, ठीक है। इस तरीके से जो वहाँ की सबसे बड़ी सोसाइटी थी उसका वो एक मेंबर था, ठीक है। ऊँची सोसाइटी भी न्यूटन को ज़्यादा देर तक रास ना आई, तो उसको भी ज़्यादा देर तक रास ना आई, यानी कि उसमें वो सेटिस्फाई नहीं हो पाया। दौलत और दिखावे की दुनिया साइंस की दुनिया से बेहतर साबित ना हो सकी। तो ये जो यानी कि ऊंची सोसाइटी, बड़े लोग, ये उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, ठीक है। तो साइंस जो इसकी अपनी जो तहकीक थी जिसके लिए ये पैदा हुआ था, तो उसने महसूस किया कि दरबार होना साइंसदां
बनने से बेहतर नहीं। तो उसने कहा कि ये दरबार होना यानी कि ये जो जैसे ये मेंबर बनना चाहता सोसाइटी का, एक्चुअली इसको शौक देखिए मुझे कोई कुर्सी मिलेगी, तो उसको अच्छी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं लगी। तो उसने कहा साइंसदान ही बनना बेहतर है, ये दोबारा होना साइंसदान से बेहतर नहीं है। आखिरी उम्र में न्यूटन अपनी तजुर्बागाह वापस चले आए। तो आखिर पे फिर ये अपनी जहाँ पे इनकी लेबॉर्ट्री थी, जहाँ पे ये तजुर्बे करते थे, रिसर्च करते थे, वहाँ पे वापस चले आए। इस दुनिया में जो उसने अपने लिए बसाई थी, वो दुनिया यानी कि जहाँ वो रहता था, जहाँ उसका उठना बैठना सब कुछ था, वही उसकी दुनिया थी। और जहाँ उसने वक्ती तौर पर फराज हासिल किया था, ठीक होना हो गया भाग जाना, यहाँ पे वो जहाँ से वो भाग गया था, ठीक है, जहाँ ने वक्ती तौर पर फराज हासिल किया था, यहाँ से वो भाग गया था, ठीक है, ओके। फिर वहाँ पे वापस आ गया, फराज हासिल करना हो गया भाग जाना, वो वहाँ से भागा हुआ था, फिर वहाँ पे आके बैठ गया। उसने 85 साल की उम्र में इस जहाँ से कोच किया, यानी कि इस जहाँ से चले गए, और वो यानी कि जिसको हम बोलेंगे उनकी वफ़ात हो गई, ठीक है, वो मर गए। तो इस तरह से ये सबक जो है न्यूटन का कारनामा मुकम्मल हुआ चाहता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझाया हुआ होगा। तो मिलते हैं एक नए सबक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, बने रहें हमारे साथ। स्टे ट्यून, बाय बाय।